Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing well. In this video lecture, we are going to discuss the part first of question paper that was asked in Sikkim Srinagar MSc Radiology, Radiotherapy and Nuclear Medicine Examination 2023. So guys, without wasting time, let's get right into the topic. So today's question number first is trauma radiography. What is the purpose of trauma series? यानी ट्रॉमा रेडियोग्राफी में ट्रॉमा सीरीज का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज टू इंक्लूड ए कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स. सेकंड इज टू फोकस solely on head and neck injuries. Third is to evaluate extremity fractures only. Fourth is to capture images of the chest and abdomen. So its right answer is option number A, that is to include a comprehensive एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स. यानी जो हम ट्रामा रेडियोग्राफी में ट्रामा सीरीज देते हैं उसका पर्पस ये है कि हम बॉडी के हर एक सिस्टम का कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन लें. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, that is to include a comprehensive examination of all body systems. Now let's move to question number 2. Question number 2 is why is portable radiography commonly utilized in trauma and emergency settings? ट्रामा और emergency settings के लिए हम पोर्टेबल रेडियोग्राफी को कॉमनली क्यों यूटिलाइज करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं. Number first option is to increase the radiation exposure, to minimize patient movement and transfer, to provide a more comfortable imaging environment, to replace standard fixed radiography equipment. So इसका जो appropriate answer है that is option number B, to minimize patient movement and transfer. To minimize the patient movement and transfer. Now let's move to question number 3. Question number 3 is why is water soluble contrast media preferred in certain spatial radiography procedures? कुछ स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर्स में हम वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया क्यों प्रेफर करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं. इट प्रोवाइड्स बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, it has lower cost, it minimizes patient discomfort, it is easier to administer orally. तो जो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया हैं तो इनको हम स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर्स में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये हमें प्रोवाइड करे बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट. सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज it provides better soft tissue contrast. Now question number 4 is in spatial radiography for the gastrointestinal system, what is the purpose of using barium sulfate as a contrast agent? यानी जब हम स्पेशल रेडियोग्राफी करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का तो जब उसमें हम बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं एज ए कंट्रास्ट एजेंट. तो बेरियम सल्फेट का पर्पस क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में स्पेशल रेडियोग्राफी के लिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, टू हाईलाइट द ईसोफेगस, टू एनहांस सॉफ्ट टिश्यू विजिबिलिटी इन द इंटेस्टाइन्स, टू एसेस बोन डेंसिटी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज to enhance the soft tissue visibility in the intestines. Now let's move to question number 5. Question number 5 is why is careful consideration of contrast allergies and renal function important before using आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया? यानी आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करने से पहले ये क्यों ज़रूरी बन जाता है कंट्रास्ट एलर्जीज और रिनल फंक्शन की केयरफुल कंसिडरेशन लें. तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं.
to increase the risk of adverse reactions, to minimize radiation exposure, to ensure better image quality, to prevent potential complications in certain patients. So its correct answer is option number D, that is to prevent potential complications in certain patients. Now let's move to question number 6. Question number 6 is, what is the advantage of using ultrasound over X-rays in imaging soft tissues? Soft tissues की इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड का क्या एडवांटेज है ओवर यूजिंग एक्सरेज, यानी अल्ट्रासाउंड का क्या एडवांटेज है एक्सरेज से जब हम सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजिंग करते हैं। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स बेटर बोन विजुअलाइजेशन, अल्ट्रासाउंड यूजेस लोअर फ्रीक्वेंसीज, अल्ट्रासाउंड डज नॉट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड हैज फास्टर इमेजिंग स्पीड। So it is absolute answer is option number C, that is ultrasound does not use ionizing radiation. Now let's move to question number 7. Question number 7 is, which component of the ultrasound machine is responsible for converting electrical energy into sound waves and vice versa? यानी अल्ट्रासाउंड मशीन का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करना और साउंड वेव्स को बैक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सो क्लियरली इट इज द ट्रांसड्यूसर। तो ये सब जो प्रोसेस होता है इसमें इट इज ड्यू टू द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड वेव्स में और साउंड वेव्स कन्वर्ट बैक होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमेज रिसेप्टर इन रेडियोग्राफी इक्विपमेंट? रेडियोग्राफी इक्विपमेंट में इमेज रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टू जनरेट एक्सरेज, टू कन्वर्ट एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट, टू डिटेक्ट एंड कैप्चर एक्सरेज, टू फिल्टर एक्सरेज। तो इमेज रिसेप्टर का काम होता है एक्सरेज को डिटेक्ट करना और कैप्चर करना। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ डज पावर डॉपलर डिफर फ्रॉम कलर डॉपलर इन असेसिंग ब्लड फ्लो? जब ब्लड फ्लो की असेसमेंट होती है तो पावर डॉपलर कैसे डिफर करता है फ्रॉम द कलर डॉपलर? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पावर डॉपलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ब्लड वेलोसिटी, कलर डॉपलर इज मोर सेंसिटिव टू लो फ्लो, कलर डॉपलर प्रोवाइड a qualitative assessment of flow, power doppler is sensitive to flow direction only. Its right answer is option number A, that is power doppler provides information on blood velocity. Now let's move to question number 10. Question number 10 is, what does the term color doppler refer to in ultrasound imaging? अगर हम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की बात करेंगे तो टर्म कलर डॉपलर क्या रेफर करती है? टर्म कलर डॉपलर का मतलब क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। विजुअलाइजेशन ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स, रियल टाइम मैपिंग ऑफ ब्लड फ्लो वेलोसिटीज, एनहांसमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, मेजरमेंट ऑफ टिश्यू डेंसिटी। सो इट्स एब्सोल्यूट आंसर इज option number B, that is a real time mapping of blood flow velocities. Now let's move to question number 11. Question number 11 is, in computed tomography what component rotates around the patient to acquire cross sectional images? computed tomography में कौन सा कंपोनेंट ऐसा होता है जो कि पेशेंट के इर्द गिर्द घूमता है और क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेता है? तो इट इज क्लियरली द एक्सरे ट्यूब दैट रोटेट्स अराउंड द पेशेंट
and acquire cross-sectional images. So its right answer is option number A, that is X-ray tube. Now let's move to question number 12. Question number 12 is, what is the purpose of image reconstruction in CT, computed tomography? कंप्यूटेड टोमोग्राफी में इमेज रिकॉन्स्ट्रक्शन का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. टू इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट, to reduce radiation dose, to convert X-ray photons into visible light, to create detailed cross-sectional images from raw data. Its correct answer is option number D, that is to create detailed cross-sectional images from raw data. Now let's move to question number 13. Question number 13 is, what advantage does digital radiography offer in terms of image storage and retrieval? अगर हम इमेज स्टोरेज और रिट्रीवल की टर्म्स में देखेंगे तो डिजिटल रेडियोग्राफी की क्या एडवांटेज हैं? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या हैं. लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इनएबिलिटी टू आर्काइव इमेजेस, efficient electronic storage and easy retrieval, dependence on physical film archive. So its correct answer is option number C, that is efficient electronic storage and easy retrieval. Now let's move to question number 14. Question number 14 is, in digital radiography, which device is responsible for converting X-ray photons into electronic signals? डिजिटल रेडियोग्राफी में कौन सा डिवाइस रेस्पॉन्सिबल है एक्सरे फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं. फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन, इमेज इंटेंसिफायर, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर पैलेट, detector or flat panel receptor. So its right answer is option number D, that is detector or flat panel receptor. डिटेक्टर या फ्लैट पैनल रिसेप्टर एक ऐसा डिवाइस होता है डिजिटल रेडियोग्राफी में जो कि एक्सरे फोटॉन्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's session is, what magnet type is commonly used in clinical MRI scanners? जो क्लिनिकल MRI स्कैनर्स होते हैं इनमें सबसे कॉमन टाइप ऑफ मैग्नेट कौन सा यूज होता है? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. परमानेंट मैग्नेटिस, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स, फेराइट मैग्नेटिस. क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is superconducting magnets. So guys, these were the 15 questions that were asked in MSc Radiology, Radiotherapy and Nuclear Medicine examination, SICKIMS Srinagar 2023. Soon I will be back with the part second of this session. Thank you.